my passion to pursue career in this field arose when I started volunteering. एक मिनट. बहुत ज्यादा लिख रखा है क्या तुमने? हाँ ये लंबा भी है। वेरी गुड. तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. तो my passion to pursue this my career in this field. अब जैसे ये this field है ना, देखो अब जब तुम देख रहे हो तो सब चीज देखो. दिस फील्ड जो है ये डायरेक्टली बोलता है कि लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाले फील्ड में. तो इसलिए यहाँ पे रिलेटेड फील्ड कर दो, क्योंकि यू नेवर न्यू द नेम. जब तुम इंटर्नशिप कर रही थी है ना, तो तुमको ये लगा होगा कि हम सोशल सेक्टर में या लोगों के डेवलपमेंट पे काम करें, है ना. तो उस तरह का कुछ चीज लिख दो या रिलेटेड फील्ड लिख दो, है ना. When I started volunteering at an NGO as a part of the social service scheme at my college, NSS कर दो इसको सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि फिर वो इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास पढ़ने का. ठीक है, क्योंकि जब तुमने बहुत बड़ा लिखा है तो या तो एकदम फ्लो में उनके पास टाइम है तो पढ़ लेंगे, आप पता नहीं किस मूड में वो बैठे हैं, घर पे क्या हो रहा है उनके, है ना. तो बर्तन वर्तन ना धोना पड़ रहा हो सर को, तो बोलेंगे इतना पढ़ेंगे तो इतने में हमारा 2 बर्तन धुल जाएगा. तो छोटा से छोटा लिखो. As a part of the NSS at my college was exposed to a whole new world. वाह, ऐसे कैसे हो गया? इसे इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करो ना. मतलब I got your point कि जब my passion to pursue my career, ये जैसे 2 बार my तुमने लिखा है, ये सब थोड़ा सही करो. मतलब ऐसे लिखो the interest, है ना, in this particular field, या this particular field नहीं लिखो, in this interest in social sector, my interest in social sector arises when I started working, I started volunteering for NGO and in outskirts of Delhi for shelter homes. ठीक है. तो ये क्योंकि बस बहुत जगह तुमने अलग अलग से आई का यूज किया है, chosen to work, है ना, my college, है ना, और ये whole new word की कोई जरूरत नहीं है ना. Of course I understand for your case it is there, है ना, तो उसको बाद में लिखो. It was a whole new world for me, है ना. I had always been aware that there was widespread poverty and deprivation in our society, but I never been settings to see it with my own eyes until then. ठीक है, ये लाइन ठीक है, ठीक है. It saddened me deeply to see how there were so many girls, women with so much potential and hardworking and capability, but no one to guide them how they can create a livelihood out of the skills that they already had. All this reminded me of instance of my childhood wherein I had come across people who had skills like they knew how to do handwork, stitching, etc. But all they did was to work as a house help. ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है. और तो थोड़ा बड़ा है लेकिन ये इतना अच्छा है कि हम काट नहीं रहे. ठीक है. So as a child I could not guide them. I did not know how to help them. But as I volunteered at था क्या यहाँ पे 3 NGOs over the past, I started to understand their problems, their state of mind, how they do not have an adequate amount of opportunity, which has driven me even more to help and give back to the community in a way which will be sustainable, stable and will help them in a way. फिर in a way कई जगह है. तुम यहाँ पे जो तुमने पिच किया ना, देखो मेरी बात समझो. At that time you could not guide them, है ना. But जब तुम volunteer की तो with you found कि you can do it actually, है ना. There are ways to do it, है ना. ये जो तुमने यहाँ से चेंज करो, क्योंकि ये सिंक बनना चाहिए ना. जब तुमने लिखा कि उस समय तुम तो समझ नहीं पाए कि क्या करना है, but
एनजीओ में गए तो तुम वहां पे तुमने देखा कि a lot can be done for them because हम्म what they have is skill, what they don't have is entrepreneurial skills. हम्म What they have is skill, but what they don't have is the knowledge where they can sell their skill, है ना? तो हम्म you can act as a bridge for them to the market, मतलब them and the market. ओके सर। तो समझे, तो तुम उसको सिंक बनाओ कि उस समय तुम्हें पता नहीं था, अब तुम्हें पता है while working at NGO. but हम्म that but for that you need to know more about them, their हम्म livelihood problems, and more about entrepreneurship also. हम्म Yeah. And for that you are thinking to go for a past master course which हम्म can train you professionally in these areas. ओके सर। ये बात समझ में आ रही है? हम्म तो ये रिकॉर्डेड भी है, तुम उस हिसाब से देख भी लेना। हाँ तो अब यहाँ ये वाला जो है ना, इसको चेंज कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। एज एज आई स्पोक। हम्म फिर उसके बाद अब तुम ये समझ गए कि वहां पे अब तुम कर सकते हो, एक्चुअली यू कैन डू इट, हम्म एक्चुअली पीपल कैन डू इट, एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ब्रिज द गैप उनके स्किल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और प्रोडक्ट को फिर बेचने के लिए। ये हाँ नॉलेज बस नहीं है, कई बार स्किल होता है, जैसे किसी लेडी को बहुत अच्छा अचार बनाने आता है, हम्म बट हाउ टू क्रिएट अचार एज ए प्रोडक्ट, पैकेजिंग कैसे करना है, हम्म कैसे है, क्या नाम रखना है, रजिस्टर क्या कराना है ना, फूड हम्म सर्टिफिकेट लेना है, तो ये सब काम तुम करोगे, ठीक है? एंड यू यस विल सर। क्रिएट अ सप्लाई चेन, जिससे हम्म मैनेज करने वाले भी हो सकते हैं, उन्हीं के घर के लोग हो जाए या उसी सोसाइटी का लोग हो जाए, ठीक है? तो हम्म उनके पास स्किल है, उनके पास कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए है, एंड देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर दोज स्किल्स एंड लुकिंग फॉर दोज ऑफरिंग्स। तो आप उस हम्म का काम करोगे तो यू कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड चेन फॉर देम, ठीक है? तो ओके सर। लेकिन इसमें तुम्हें क्या जरूरत है ना? हम्म तुम्हारा तुम कैसे करोगे इसको? तो तुम बोलोगे चलो ठीक है, हम समझ गए, मेरे पास एम्पैथी भी है, नाउ आई नीड नाउ आई नीड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है? हाउ टू हम्म क्रिएट एंटरप्राइज, हाउ टू क्रिएट अ सप्लाई चेन, हाउ टू क्रिएट finances, हाउ टू गेट finances, हाउ टू मैनेज पीपल, ठीक है? हाउ टू ब्रिंग ऑल द पीपल टुगेदर इन अ वन अम्ब्रेला, ठीक है? एंड लर्निंग मोर अबाउट देयर लाइवलीहुड इशूज, कि कहाँ से लाइवलीहुड वल्नरेबल होता है, कौन कौन सी चीजें से लाइवलीहुड क्रिएट हो सकती है, और वो हम्म सीखोगे। अब ये चीजें सीखोगे कैसे? ये कॉलेज में जब तुम्हारे पास पेपर्स होंगे, रिलेटेड केस स्टडीज होंगी, हम्म है ना, पुराने एक्सपीरियंसेस होंगे, उन सब चीजों से तुम सीखोगे, ठीक है? तो यस सर। अब यहाँ से ना इसको तुम बहुत छोटा कर सकती हो। तो ये जो नीचे दो पैराग्राफ है उनका क्या करूं? देखो छोटा पढ़ ले। करूं उसको भी? I wish to enhance and strengthen their skills by learning in detail more about different communities. अब which उनके स्किल को स्ट्रेंथन करने के लिए तुम क्या सीखोगे, है ना? हम्म उनके स्किल को तो स्किल का ट्रेनर से स्ट्रेंथन करेगा ना, मतलब तो अगर तुमको ये फील होता भी है कि उनको स्किल तो है बट इट इज नॉट प्रोफेशनली मैच्योर, है ना, हम्म जैसे सिलाई करने आता है बट प्रोफेशनली कैसे सिलना है ये नहीं आता है, हम्म ठीक है? पेंट करने आता है बट प्रोफेशनली पेंटिंग कैसे बनानी ये नहीं आता है, तो वो ट्रेनिंग तुम थोड़ी ना दोगे, वो तो उसी स्ट्रीम का आदमी देगा, है ना? हम्म तो वो तो बेसिकली ये जो तुमने पार्ट बोला, ये लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज है कि किस अपॉर्चुनिटी को टैप किया जाए, है ना? हम्म तो लेकिन तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा स्किल क्या डेवलप होगा, उसके लिए तुम कॉलेज जा रहे हो, है ना? यू आर नॉट हम्म देयर स्किल डेवलपमेंट, पहले अपना स्किल डेवलपमेंट जो क्या है। अच्छा, उसके बाद तुमने जो लिखा है हाउ टू क्रिएट लाइवलीहुड एंड डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स, हाँ ये जो है ना, जैसे इसमें दो है कि एक तो तुमको अपने लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल चाहिए, हम्म तुमको अपने लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए। चलो ये भी तुमने ठीक लिखा, हाउ टू डेवलप द सेम इन पीपल, आप लोगों में भी डेवलप करना चाहते हो कि वो खुद से भी अपने लिए वो कर सके, है ना? यू वांट टू अंडरस्टैंड
ऑल अबाउट लाइवलीहुड, है ना, लाइवलीहुड। इसमें आप इशूज, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करूं? हाँ मतलब ये नहीं, इसके बेस पे बनाओ, है ना, कि लिख भी सकती है ऐसा कि आई वुड लाइक टू, मतलब जो हमें करना चाहते हैं और मुझे पता है कि हम कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे ये सब चीजें चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें तुम सीखोगे और उसके बाद ये सब ठीक है। जो तुमने लिखा है ना, आई वाज टू आइडेंटिफाई लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग आउट इनोवेटिव सॉल्यूशन टू टैकल देम। तो कैसे लाओगे, इसी सब चीजों से लाओगे ना, है ना। इसमें ये भी लिख देते हैं एंटरप्राइज स्किल्स, ठीक है। अच्छा, तुम एलएससी का तो कोर्स अलाइनमेंट भी किया है ना, मैंने वो वीडियो भी देख लेना एक बार, उससे तुम्हें बहुत चीजें आइडिया हो जाएगा। यही सब चीज तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। आई बिलीव आई एम फिट फॉर दिस कोर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बिलीव आई एम फिट फॉर दिस कोर्स, आई डू नॉट आई डिड नॉट नो माय सराउंडिंग्स एंड हैव द एबिलिटी, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके सर। ठीक है। क्योंकि अपना कैंडिडेचर जो है उसको इस तरीके से नहीं वो करना है कि तुम फिट हो, है ना। जस्ट यू टेल यू व्हाट यू वांट टू डू विद दिस कोर्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ, ये ठीक है। अब इसके बाद वर्क डन रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ स्टडी, है ना, ये ठीक है। इसमें तुमने जो किया है वही लिखा होगा, हाँ, वो तीनों एनजीओ के बारे में लिखा है, ठीक है। तो एक बार तुम वो लाइवलीहुड वाला वीडियो भी देख लेना, है ना, ऐसे, और बाकी सब ठीक है तुम्हारा, ठीक है। सर। ओके, चलो, तो ये हो गया थैंक यू। हमारा